ہیڈ لائن سے آپ نے ملاحظہ کی، کرتے ہیں خبروں کا باقاعدہ آغاز۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے نئی اسٹریٹجی کے ساتھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی ٹھان لی۔ واضح کر دیا کہ مارچ تک الیکشن کی تاریخ دیں تو ٹھیک، ورنہ اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ انہوں نے اس سے آگے کی بھی پلاننگ کر رکھی ہے۔ اپنے ارکان اسمبلی کو ہدایت کر دی ہے کہ اگر صوبائی سطح پر بھی الیکشن ہوئے تو اپنے حلقوں میں جائیں اور الیکشن کی تیاری کریں۔ الیکشن کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے اور ان کو بھی پتا ہے۔ اگر تو مارچ کے اینڈ تک آپ تیار ہیں الیکشنز کے لیے، اگر انہوں نے اس پہ نہ مانے تو ہم نے اس مہینے الیکشن کروا دینے ہیں اپنے۔ کون جیتے گا ایسا آپ کی جنگ؟ حکومت اور اتحادی ششپنج کا شکار۔ کپتان اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار۔ کہ انہوں نے مجھے پوری اتھارٹی دے دی ہے، جس دن میں چاہوں اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا۔ الیکشن تو ہونا ہے، آؤٹ سائڈ ہم کدھر تک دیکھنا چاہتے ہیں؟ مارچ۔ اگر تو مارچ کے اینڈ تک آپ تیار ہیں الیکشنز کے لیے، اگر انہوں نے اس پہ نہ مانے تو ہم نے اس مہینے الیکشن کروا دینے ہیں اپنے۔ ملک میں عام انتخابات ہوں یا ہو صوبائی سطح پر الیکشن، عمران خان نئی اسٹریٹجی کے ساتھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ان ایکشن۔ کپتان نے اپنے کھلاڑیوں کو فیلڈ میں اترنے کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ایم پی ایس کو فوری طور پر اپنے حلقوں میں پہنچ کر الیکشن کی تیاری کا کہہ دیا۔ عمران خان ایک جانب حکومت کو مارچ تک جنرل الیکشن کرانے کے لیے مہلت دے رہے ہیں، دوسری جانب اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد صوبائی سطح پر الیکشن ہوئے تو اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ کپتان گیند سنگھ یارکر کے بعد حکومت بھی آئینی اور قانونی ماہرین کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے۔ اب وکٹ اڑے گی یا ہوگا ڈیفینڈ؟ سیاست کی اس نئی پچ کس کے لیے ہوگی سازگار؟ سب کو ہے انتظار۔ عمران خان نے سندھ اراکین کو اسمبلی سے استعفے دینے سے روک دیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت سندھ اسمبلی سے استعفے دینے سے پارٹی کو نقصان ہوگا۔ سندھ میں ضمنی انتخاب سے پارٹی کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے زمان پارک میں گزشتہ روز ارکان سندھ اسمبلی سے ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ عمران خان نے سندھ اراکین کو اسمبلی سے استعفے دینے سے روک دیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اس وقت سندھ اسمبلی سے استعفے دینے سے پارٹی کو نقصان ہوگا۔ سندھ میں ضمنی انتخاب سے پارٹی کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 15 جنوری کے بعد عمران خان سندھ کے دورے کے دوران سیاسی خاندانوں اور ممبران قومی و صوبائی اسمبلی سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے کم مارجن سے ہارنے والے سندھ کے 25 حلقوں پر فوکس کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان سے ملاقات میں سندھ اسمبلی کے ممبران کا علی زیدی اور عمران اسماعیل پر طنز کرتے ہوئے کہنا تھا کہ علی زیدی اور عمران اسماعیل کو بھاگنے کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ دونوں حضرات آزادی مارچ پر فائرنگ کے وقت سب سے تیز بھاگے۔ ملاقات میں 26 ممبران سندھ اسمبلی نے اپنے ہاتھ سے تحریر شدہ استعفے عمران خان کو پیش کر دیے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں خالی گراؤنڈ نہیں دیں گے۔ سندھ اسمبلی سے استعفے کا فیصلہ پنجاب خیبر پختونخوا کے بعد ہوگا۔ عمران خان کی بدلتی حکمت عملی پر حکومتی اتحاد بھی اپنی صف بندی میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم نے عمران خان کے بیان کو پارلیمانی نظام پر حملوں کا تسلسل قرار دیا تو یوسف رضا گیلانی نے غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ حکومتی رہنماؤں نے صاف بتا دیا کہ الیکشن کی تاریخ جلد نہیں ملے گی۔ عمران خان کے سیاسی داؤ پیچ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کے حالیہ بیان کو پارلیمانی نظام پر حملوں کا تسلسل قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں لکھا، عمران خان کی سیاست کا مقصد فقط اقتدار کا حصول ہے، چاہے اس سے ملک کو جو بھی نقصان پہنچے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا، عمران خان مذاکرات چاہتے ہیں تو غیر مشروط بیٹھے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے کیسز پہ ہم نے 10 سال قید ہم نے اٹھانی پڑی ہے ہمیں۔ یہ تو بڑے بڑے کیسز ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ کوئی حتمی پوزیشن پہ نہیں آئیں گے؟ اس لیے اس خوف ڈر سے یہ چاہتے ہیں اس سے پہلے الیکشن ہو جائے۔ اور ان کو بہت غلط فہمی ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو ہم 2/3 میجورٹی لے جائیں گے۔ وہ اتحادی ہیں، جماعتیں، وہ اپنے علاقوں میں بڑی پاورفل ہیں۔ آئندہ بھی مخلوط حکومت بنے گی اور انہوں نے کہہ دیا یہ غداروں کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا، تو پھر ان کو
तो किस चीज़ का फिक्र है, आइंदा तो हुकूमत में वो नहीं होंगे। वफाकी वजीर साद रफीक ने सवाल किया कि क्या असम्बलियाँ टूटने के लिए बनती हैं? एक दिन कहते हैं बात करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं कि मैंने मजाक किया था। अब ये नहीं पता मजाक कब करते हैं और सीरियस कब होते हैं, तो इनसे कौन बात करेगा। एक्सटेंशन अगर गलती मान ली जाए खान साहब जैसे फरमा रहे हैं, तो जब दोबारा एक्सटेंशन की पेशकश करने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी? वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने फौरी इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा जनरल इलेक्शन की तारीख का ऐलान 15 अगस्त 2023 को होगा। 15 अगस्त 2023 की डेट देंगे तब खत्म हो जाएगा, उसके चंद माह के बाद इलेक्शन हो जाएगा। लीगी रहनुमा ने तो कारकुनान को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का भी कह दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वजीर आजम के ट्वीट पर रद्द अमल में कहा कि हैरान हूं, चोर दरवाजे से वजीर आजम की कुर्सी पर बराजमान शख्स अपनी हुकूमत को पार्लिमानी जमहूरियत करार दे रहा है। शहबाज शरीफ साहब, आपने मुल्क ऐसा निजाम तश्कील दिया है कि लोगों का जमहूरियत से एतमाद ही खत्म हो गया है। सियासी कारकुनों, सहाफियों के साथ जो मजालिम इन 7 माह में हुए, उनका हिसाब होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने पीटीआई के खिलाफ साथ देने की दावत दी थी। मैंने जवाब दिया, करप्ट निजाम का हिस्सा नहीं बन सकता। तमाम पार्टियों के लीडर लूट मार में शामिल हैं। तांदलियावाला में कारकुनों से खिताब में कहा कि इक्तदार मिलने पर मुल्क की बंजर जमीन गरीबों में तकसीम कर देंगे। आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने पीटीआई के खिलाफ साथ देने की दावत दी थी। मैंने जवाब दिया कि करप्ट निजाम का हिस्सा नहीं बन सकता। तमाम पार्टियों के लीडर लूट मार में शामिल हैं। तांदलियावाला में कारकुनों से खिताब में कहा कि इख्तियार मिलने पर मुल्क की बंजर जमीन गरीबों में तकसीम कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने दावा किया है कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने पीटीआई के खिलाफ साथ देने की उन्हें दावत दी थी। उन्होंने जवाब दिया कि करप्ट निजाम का हिस्सा वो नहीं बनेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि तमाम पार्टियों के लीडर लूट मार में शामिल हैं। तांदलियावाला में कारकुनों से खिताब में कहा कि इख्तियार मिलने पर मुल्क की बंजर जमीन गरीबों में तकसीम कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीटीआई के खिलाफ साथ देने की दावत दी थी। उन्हें जवाब दिया गया कि करप्ट निजाम का हिस्सा नहीं बन सकते। तमाम पार्टियों के लीडर लूट मार में शामिल हैं। तांदलियावाला में कारकुनों से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि इख्तियार मिलने पर मुल्क की बंजर जमीन गरीबों में तकसीम कर देंगे। इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात के मामलात से पर्दा हटा दिया। कहा, साबिक जनरल को एक्सटेंशन देना बड़ी गलती थी। हर शख्स पर एतबार करना सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने कहा कि हमें यकीन दिलाया जाता रहा कि उनकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, लेकिन पसे पर्दा साजिश होती रही। रिपोर्ट देखिए। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, अब ये जरा सुने, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा। मेरे पास जो ये खत है, ये सबूत है। मैं आपको वादे कर देना चाहता हूं कि फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म फोर्सेज हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफा फैसले होते हैं, उनको फैसले अच्छे नहीं होते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात क्या हुआ, कैसे हुआ? इमरान खान ने मामलात से पर्दा उठा दिया। कहा, साबिक जनरल को तोसी देना मेरी गलती थी, उन्होंने डबल गेम खेली। मैंने कभी
फील नहीं किया कि ये एक कमजोरी है कि लोगों को ट्रस्ट करो। यार मैं लोगों को ट्रस्ट करता हूँ, अगर लोग मुझे कोई बात कहते हैं मैं समझता हूँ ये ठीक कह रहा होगा, क्योंकि मैं क्यों उसके ऊपर शक करूँ। पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि ये कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। निजी टीवी को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, मेरी कमजोरी है कि हर शख्स पर एतबार कर लेता हूँ, जो कहा जाता था मैं मान लेता था, मगर मुझे धोखे दिए गए। आईबी वाला मुझे डर डर कर बताता था। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। मुझे आईबी की रिपोर्ट आ रही थी, वो बेचारा वो भी मुझे डर डर के कहता था, चीजें बतानी शुरू कर गया। मुझे वो राइटिंग में नहीं देता था, मुझे खुद आके बताता था कि पता न चल जाए। उन्होंने कहा कि MQM के लोगों ने दबे अल्फाज में हमें बताया, बाप पार्टी उनके कंट्रोल में थी, शाहजैन बुगटी तो उनके बगैर हिलता ही नहीं था। MQM के लोगों ने हमें चुप दबे दबे लफ्जों में सारों ने कहा, वो बैप तो कंट्रोल में ही इनके थी, वो शाहजैन बुगटी तो इनके बगैर हिलता ही नहीं था। तो हमें तो पता, तो हम हैरान कि ये मुझे कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, उधर से और सिग्नल मिल रहे हैं। इमरान खान ने बताया कि वाज़ेह कर दिया था कि आप इधर नहीं तो मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। मैंने उनको कहा मुझे क्लियर कर दे, मैं कहा मेरे से ये अब ना करें कि ये हम आपके साथ भी हैं, और मैंने कहा क्लियर कर दें आप इधर हैं या उधर हैं। अगर आप नहीं हैं तो फिर मैं और मेरी स्ट्रेटेजी है, अगर हैं तो और स्ट्रेटेजी। तो उन्होंने कहा वो कौन सी स्ट्रेटेजी? मैंने कहा मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। इमरान खान का कहना था कि भुट्टो अयूब खान को डैडी कहते थे, नवाज शरीफ को भी जनरल जैलानी ने पाला, लेकिन मैं अवाम की नर्सरी से आया हूँ। अब बात आजाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात की। दूसरे मरहले के सरकारी नताइज आ गए। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने सबको पीछे छोड़ दिया। सियासी जमातों में तहरीक इंसाफ 244 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात, हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया। सियासी जमातों में तहरीक इंसाफ 244 नशिस्तों के साथ सबसे आगे, 246 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने मजमूई तौर पर 133 नशिस्तें हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 118, आजाद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के 28 उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी 28 नशिस्तें हासिल की। तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी ने साथ, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के हिस्से में 3 नशिस्तें आईं। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर PTI के खिलाड़ी खूब जश्न मनाने में मसरूफ हैं। बात सिंधी सखाफत के दिन की। आज सूबे में ईद का समा रहा। सिंध भर में इस हवाले से रैलियां निकाली गईं। सखाफती तकरीब का एहतमाम किया गया। हर शख्स अजरक और सिंधी टोपी पहनकर निकला। सकाफत का दिन, हर तरफ ईद का समा। गली गली रैलियां निकाली गईं। बच्चे और बड़े गले में सिंधी सकाफती अजरक और सर पर रिवायती सिंधी टोपी पहने नजर आए। गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। शुरका ने रक्स करके खुशी का इजहार किया। सकाफती दिन पर बच्चों की खुशी भी दीदनी थी। आज हमारा सिंधी सकाफत का दिन है और ये दिन हम जोशो जज्बों से मनाते हैं और ये दिन ईद के दिन जिससे हमारे लिए होता है। रैली में मौजूद ईद मना रहे हैं। लोगों का कहना था कि सिंध अमन और मोहब्बत की सरजमीन है। पूरी दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि सिंध की जमीन और सिंध में रहने वाले लोग अमन पसंद लोग हैं। शुरका का कहना था कि सिंध का सकाफती दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देना है। सिंध अमन की धरती है जहाँ सारे दरिया आकर एक हो जाते हैं। यहाँ रहने वाले सारे सिंध धरती से प्यार करते हैं। सिंध के सकाफती दिन के सिलसिले में गवर्नर हाउस में भी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंधी सकाफत के दिन पर गवर्नर हाउस भी सकाफती रंगों से सज गया। फहीम अल्लन फकीर और दीगर फनकारों ने सुर बिखेर कर भरपूर दाद समेटी।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि सिंध धरती में रहने पर फख्र है। मोहब्बत का पैगाम पूरे पाकिस्तान में फैलाने की जरूरत है। सिंध में और सिंध की धरती में रहने पर मुझे फख्र है, तो क्यों ना उसकी सकाफत के अजरक और टोपी के दिन को बहुत शानदार तरीके से मनाया जाए और इस मोहब्बत के पैगाम को पूरे सिंध में और फिर पूरे सिंध से पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाए। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, सबको आपस में जोड़ना एक अहम जिम्मेदारी है। हम कुशादा दिली इख्तियार करें तो पाकिस्तानी कौम मुमताज होगी। ये कुशादा दिली अगर हमारी कौमी पहचान बन जाए तो हम पूरी दुनिया में एक कौम की तरह सर उठा के चलने के काबिल होंगे। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सकाफती दिन की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नौजवान अपनी सकाफत को उजागर करने के लिए किरदार अदा करें। इमरान खान ने मुबारकबाद दी और कहा कि सिंध सूफियों और आज़ादी की सरजमीन है। सिंधी सकाफत के दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। ट्वीट किया, वफाक की एक इकाई की खूबसूरती उजागर करने का दिन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी सिंधी सकाफत दिन पर मुबारकबाद दी। कहा कि सिंध सूफियों और आज़ादी की सरजमीन है। अफसोस ये सरजमीन जरदारी माफिया के मुजालिम का शिकार है। कहा, जालिमों के खिलाफ सिंध एक बार फिर उठेगा और अपनी आज़ादी वापस लेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है, नौजवान अपनी सकाफत को उजागर करने के लिए किरदार अदा करें। मुल्क की सकाफत, आर्ट और अदब को फरोग देना पीपल्स पार्टी का मंशूर है। पाकिस्तान का सकाफती तनों इसकी खूबसूरती और ताकत है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पैगाम में कहा कि सिंध का सकाफती दिन मकबूल सकाफती त्यौहार है। सिंधी सकाफत मेहमान नवाजी, रवादारी और मोहब्बत के जज्बों से मालामाल है और दिलकश रवायात की अमीन है। उखवत और रवादारी पर मबनी सिंधी सकाफत का हुस्न सबसे जुदा है। कराची में जर्मन कौंसलेट जनरल रोटिगर लोटनर्स भी सिंध के सकाफती रंगों में रंग गए। सिंधी टोपी पहनकर सिंधी जबान में मुबारकबाद दी। बालिकारी आया सिंध सकाफत दिहानजो लक लक मुबारकुन लक लक तोरा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मुबारकबाद का पैगाम दिया। कहा कि सिंध की सकाफत का दिन मनाना रवायात को आगे बढ़ाने का नाम है। सिंधी सकाफत मोहब्बत और इंसानी एहतराम की सकाफत है। इंग्लिश कप्तान ने क्या चाल चली है, ये बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।